Good morning, student. See topic number 3, admission of partner, question number 6, page number 143. Here question number 6, Samir and Nisha were partners sharing profits and losses in the ratio of 3/4 and 1/4. Show the following balance sheet as on 31st March 2018. So this is balance sheet, and after that here they admit Poonam for 1/5 share on 1st April 2018 on following terms and conditions. So first Poonam introduced rupees 1,20,000 as her capital. After that Poonam would pay cash for goodwill, which would be based on 4 years purchases of past profit of last 5 years. Then third adjustment, asset were revalued as under. Here we have to mark adjustment number in balance sheet. Fixture at rupees 45,000. So mark here adjustment number 3. Then bills receivable, adjustment number 3. After that stock, adjustment number 3. And debtors at book value less a provision of 20%. Means debtors adjustment number 3. After that adjustment number 4, bills payable of rupees 15,000 have been omitted from the books. मतलब books में नहीं लिखा है. So here bills payable adjustment is there. After that profit for last 5 years, whereas under here 5 years profit is given, and through that profit we have to find out goodwill. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet after Poonam's admission. So Poonam is a new partner in this business. Now we have to open here revaluation account, okay, partners capital account and balance sheet as on 1st April 2018. In the books of partnership firm we have to open revaluation account, partners capital account and balance sheet. Now start from the balance sheet here. So first we have to see the balance sheet. Here balance sheet, first liability side is there, capital of Samir and Nisha is given. So directly that capital we transfer to partners capital account here. Credit side, because liability having credit balance, by balance brought down Samir 1,50,000 and Nisha 1,62,000. After that general reserve is there. So general reserve, this is also transferred to partners capital account. So at that general reserve amount is rupees 48,000 amount general reserve. So here working note is there, general reserve that distribute among old partners ratio, that is 3/4 and 1/4. So general reserve amount is given rupees 48, see here 48,000. So for Samir general reserve ratio 3/4, तो समीर का आएगा 36,000. And after that Nisha, that general reserve is distributed among the partners with their old ratio. So Nisha का आएगा 12,000. So that general reserve we have to transfer partners capital account by general reserve account, 36,000 for Samir and Nisha 12,000. After that creditors 90,000. This is recorded liability side here, creditors 90,000. Okay, so liability side is completed. Then asset side, stock is there. So stock record balance sheet asset side, here stock 90,000. Now adjustment number 3 यहाँ पे मार्क किया हम लोग ने. Asset were revalued as under, that stock rupees 60,000. So बैलेंस शीट के एसेट साइड में 90,000 दिया है और आउटर कॉलम में हम लोग लिखेंगे 60,000, बिकॉज दिस इज अमाउंट विल बी चेंज. 60,000 मतलब कम अमाउंट है, तो डेप्रिसिएशन 90,000 माइनस 60,000 30,000, दिस इज व्हाट
डेप्रिसिएशन, सो लेस डेप्रिसिएशन 30,000. इमीजिएटली इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा. ये रिवैल्यूएशन अकाउंट दिस इज व्हाट, नॉमिनल अकाउंट. या डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन हो गया, लॉस आ गया. सो it is recorded revaluation debit side to stock 30,000. After that fixture is given. Fixture this is also recorded balance sheet asset side 60,000 amount और एडजस्टमेंट का अमाउंट है 45,000, मतलब कम अमाउंट है. सो 45,000 आउटर कॉलम में हम लोग ने लिखा. सो 60,000 माइनस 45,000 15,000 दिस इज कॉल्ड एज अ डेप्रिसिएशन. सो अगेन एसेट डिक्रीज हो गया. एसेट डिक्रीज मीन्स रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में टू फिक्चर अकाउंट 15,000 सेकेंड इफेक्ट. आफ्टर दैट डेटर्स इज गिवन. सो डेटर्स दिस इज ऑल्सो एसेट, बैलेंस शीट एसेट में रिकॉर्ड हो गया 1,50,000. और एडजस्टमेंट में क्या दिया है, डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस अ प्रोविजन ऑफ 20%, मतलब 1,50,000 के ऊपर 20% निकाला. सो कितना आता है 30,000, दैट इज न्यू RDD. सो लेस 30,000 आउटर कॉलम 1,20,000. यहाँ भी डेटर्स का वैल्यू कम हो गया. सो एसेट रिवैल्यूएशन के डेबिट में रिकॉर्ड होगा 2 RDD, लेकिन कितना रिकॉर्ड होगा 15,000. वाई 15,000, बिकॉज ओल्ड बैलेंस शीट में ऑलरेडी 15,000 लेस हुआ है. सो यहाँ पे 15,000 आ जाएगा. दैट इज 30,000 माइनस 15,000. सो कितना आ गया 15,000. ये 15,000 माइनस किया क्वेश्चन के बैलेंस शीट का. सो आउटर कॉलम 15,000. देन बिल्स रिसीवेबल, दिस इज ऑल्सो रिकॉर्डेड बैलेंस शीट एसेट साइड. हियर बिल्स रिसीवेबल एसेट में रिकॉर्ड हो गया. बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है 90,000. 90,000 इनर कॉलम में लिखा. उसके बाद एडजस्टमेंट का इमीडिएटली देखना है. एडजस्टमेंट का बिल्स रिसीवेबल कितना है 1,20,000. थर्ड एडजस्टमेंट यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है. सो एसेट इंक्रीज 1,20,000 इंक्रीज हो गया. इंक्रीज मीन्स एप्रिसिएशन. सो ऐड होगा, ऐड 30,000. दैट 1,20,000 माइनस 90,000 तो आता है 30,000. दिस इज एप्रिसिएशन मीन्स एसेट इंक्रीज. सो रिकॉर्डेड रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 30,000. So here third adjustment is completed. After that bills payable here bills receivable हो गया. उसके बाद कैश इन हैंड दिया है. सो कैश इन हैंड हम लोग रिकॉर्ड करेंगे एसेट साइड में. अमाउंट 75,000 है. यहाँ का 75,000 लिखेंगे, वर्किंग नोट आ जाएगा 75,000. इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड 2 देखेंगे. सी फर्स्ट एडजस्टमेंट, पूनम इंट्रोड्यूस ₹1,20,000 एज हर कैपिटल, मतलब जर्नल एंट्री आ जाएगा. जर्नल एंट्री क्या आएगा, हियर कैश अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू पूनम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. ओके. आफ्टर दैट पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल विच वुड बी बेस्ड ऑन 4th year परचेसेस ऑफ पास्ट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years. मतलब ये एडजस्टमेंट नंबर 5 में जो दिया है प्रॉफिट्स 5 ईयर का, तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट पहले निकालेंगे. सो वर्किंग नोट में आएगा ये कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, दैट इज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. सो ये एवरेज प्रॉफिट ये 5 ईयर्स का लिखा है एवरेज प्रॉफिट. ओके. 60,000 प्लस 45,000 प्लस 75,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 1 2 3 4 5 ईयर्स. सो टोटल आ गया 2,55,000 डिवाइडेड बाय 5. सो एवरेज प्रॉफिट आ गया 51,000. नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है गुडविल का, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेसेस. तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस कितने हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 में, 4 years परचेसेस ऑफ पास्ट प्रॉफिट ऑफ लास्ट दिस 5 years. सो इंटू 4 years आ जाएगा. सो 51,000 इंटू 4 2,04,000 दिस इज टोटल गुडविल. और इसका शेयर कितना है पूनम का
पूनम शेयर कितना है 1/5 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2018। सो पूनम का शेयर गुडविल कितना आएगा 2,04,000 इंटू 1/5 तो आता है 40,800। दैट इज पूनम गुडविल। सो गुडविल भी ब्रिंग किया है पूनम ने। सी सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है हियर दैट सेकेंड एडजस्टमेंट Poonam would pay cash for goodwill which would be based on 4 years of purchases। मतलब ये पूनम का गुडविल कितना आया शेयर 40,800। तो इसका भी एंट्री आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सो 40,800 डेबिट 40,800 क्रेडिट। सो कैश इन हैंड पहले हम लोग ने लिखा है दैट बैलेंस शीट का कैश इन हैंड कितना है 75,000। सो ये 75,000 और ये कैश आ गया 1,20,000 कैपिटल प्लस दिस 40,800 गुडविल। सो टोटल कैश इन हैंड हो गया 2,35,800। दैट 2,35,800 वी हैव टू रिकॉर्डेड बैलेंस शीट एसेट साइड हियर 2,35,800। दैट इज 75,000 प्लस 1,20,000 प्लस 40,800। सी हियर और इसका भी एंट्री यहाँ पे आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय कैश। देखो ये आ गया एंट्री पूनम कैश अकाउंट डेबिट टू पूनम्स कैपिटल बाय कैश 1,20,000। आफ्टर दैट ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया है ओल्ड पार्टनर्स में। गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स दैट इज 40,800 इंटू विच रेशो हियर इन देयर सैक्रिफाइस रेशो। अभी सैक्रिफाइस रेशो भी हम लोगों ने ऐसे कैलकुलेट किया है दैट समीर सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू पूनम शेयर इनटू ओल्ड रेशो ऑफ समीर। ओल्ड रेशो कितना है 3/4 और पूनम का शेयर कितना है पूनम शेयर इज हियर पूनम शेयर इज व्हाट 1/5। सो 1/5 इंटू 3/4 सो आ गया 3/20। सेम वे निशा सेक्रीफाइस रेशो 1/5 इंटू 1/4 निशा का रेशो है। सो 1/20। सो सेक्रीफाइस रेशो ऑफ समीर एंड निशा 3/20 एंड 1/20 दैट इज 3:1 एंड दैट गुडविल ऑफ समीर निकालेंगे फिर। सो 40,800 इंटू 3/4 सो आता है 30,600। सेम वे निशा का 40,800 इंटू 1/4 आता है 10,200। ये इस तरीके से भी करते हैं और अगर एडजस्टमेंट में 1/5 1/4 1/3 ऐसे रेशो दिया रहेगा तो ओल्ड रेशो से ही गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है। दैट इज ओल्ड रेशो इज ऑल्सो सेम लाइक सैक्रिफाइस रेशो दैट इज सैक्रिफाइस रेशो 3:1 और ओल्ड रेशो भी कितना है 3:1। सो दैट journal entry is there goodwill account debit 40,800 to Samir's capital to Nisha's capital और ये किसमें सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सैक्रिफाइस रेशो और ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है 1 एंड सेम। कब 1 एंड सेम रहेगा अगर रेशो 1/5 1/4 1/3 ऐसे दिया रहेगा तो। So that goodwill is also distributed among the old partners by goodwill account 30,600 and 10,200। अभी गुडविल यहाँ पे नील इफेक्ट हो गया। देखो कि गुडविल यहाँ पे क्रेडिट में है और यहाँ पे डेबिट में है। सो क्रेडिट डेबिट इफेक्ट नील हो गया। ओके so first adjustment second adjustment is over। then adjustment number 4 that is bills payable of rupees 15,000 have been omitted from the books। मतलब bills payable बुक्स में लिखा ही नहीं है। omitted मतलब नहीं लिखा है omit किया है। so इसका इफेक्ट दो तरफ आएगा। one is balance sheet liability side here that is bills payable 15,000 and another effect revaluation debit side to bills payable account 15,000। so here what liability में रिकॉर्ड होगा because this is what expenses, इसीलिए कहाँ पे रिकॉर्ड होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू bills payable account 15,000। so here all adjustments are over। now we have to do the total here। so पहले टोटल करेंगे रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड इज मोर
75,000 और क्रेडिट साइड कितना है 30,000. सो 75,000 माइनस 30,000, बैलेंस इज 45,000. अगेन दिस बैलेंस, दिस इज कॉल्ड एज अ रिवैल्यूएशन लॉस. क्यों रिवैल्यूएशन लॉस है? बिकॉज दिस इज अ डेबिट बैलेंसेस ऑफ रिवैल्यूएशन. डेबिट साइड इज more than the credit side, so it is called as a revaluation loss. Again, that revaluation loss distributed among the old partners with their ratio 3:1. ये old ratio में divide होगा 3/4 and 1/4. So here for Samir 45,000 into 3/4, सो आता है 33,750. और निशा 45,000 इंटू 1/4 आता है 11,250. सो दिस इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. समीर 33,750 एंड निशा 11,250. सी दिस इज अ लॉस. दैट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस 33,750 and 11,250. आफ्टर दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे. दिस क्रेडिट साइड इज मोर 1,20,000 पूनम, देन निशा 1,84,200 एंड समीर 2,16,600. तो यहाँ पे ये अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है. सो डायरेक्टली टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,20,000 फॉर पूनम. देन निशा 1,84,200 से अमाउंट माइनस करेंगे लॉस 11,250, तो आता है बैलेंस 1,72,950. सेम वे समीर का भी 2,16,600 टोटल है, माइनस दिस डेबिट बैलेंस 33,750. सो बैलेंस आएगा 1,82,850. दिस बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. ईयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया. समीर का आया 1,82,850. देन निशा का आ गया 1,72,950 और पूनम का आ गया 1,20,000. आउटर कॉलम टोटल करेंगे 4,75,800. आफ्टर दैट बैलेंस शीट का टोटल करेंगे. लाइबिलिटी साइड का टोटल आता है 5,80,800. फिर एसेट का टोटल आता है, ईयर दो टोटल करेंगे 5,80,800. Here balance sheet tally. See in this question that different adjustment is that what here to prepare goodwill with the help of average profit. Okay. Then another adjustment, fourth one, bills payable of rupees 15,000. This is new adjustment. So you have to solve in your notebook.